Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about joints. First of all, I would like to ask few questions from you regarding joints. Here we have got the options. A option is ball and socket joint, B option is hinge joint, C option is pivot joint and D option is cartilaginous joint. And पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, most mobile and least stable type of joints is. So सबसे ज़्यादा मोबाइल और सबसे कम स्टेबल जो टाइप है joints की, that is the ball and socket joints. So best response would be alpha. Another statement, which of the following joint is considered as most stable? And the best response to this question is the cartilaginous joints out of these is the most stable. Another statement, all are types of synovial joint except. इस अरे में बॉल एंड सॉकेट, हिंज और पिवट ये तीनों synovial की सब टाइप्स हैं. Cartilaginous joints, they don't come under the heading of the synovial joints. So best response to this question would be delta, जो कि synovial joint की टाइप नहीं है. Another statement, knee joint and elbow joints are examples of. Basically ये दोनों ये synovial joints हैं और उसमें से भी specifically ये hinge joints हैं. So best response to this question would be beta. Another range of options like A option is 1, B option is 2, C option is 3 and D option is many. And हमारे पास पहली statement है ball and socket joints can move in how many planes? And the best response to this question is many. Another statement, hinge joints can move in how many planes? जो hinge joint है basically they can move only and only in the one plane. Best response would be alpha. इसकी reasoning को हम आगे चल के discuss करते हैं. Another statement, ball and socket joints can move in how many directions? And the best response to this question is many directions. And hinge joints can move in how many directions? Hinge joints can move only in 2 directions. So best response is beta. Another statement, what is the least number of pairs of muscles associated with a ball and socket joint? Straight ये आपकी बुक की लाइन है and कम से कम जो नंबर ऑफ जो पेयर्स ऑफ मसल्स हैं जो एसोसिएटेड हो सकते हैं विद अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इट वुड बी एटलीस्ट इट वुड बी 2, राइट. सो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन किसी भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ 2 से कम पेयर्स मसल्स के एसोसिएटेड नहीं होंगे. बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा टू दिस क्वेश्चन. So now let's classify the joints. First of all, joints ये हैं क्या? नाम से जाहिर है join. So joints के अंदर आता है join. So basically joints are the sites where 2 or more bones they join each other, right? So sites where 2 or more bones they join each other, they are called as joints. And joints, they are actually categorized on the basis of their movability into 3 major categories, right? इनको हमने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक वो जॉइंट्स हैं जो कि इमूवेबल हैं या नॉट मूवेबल हैं एंड इनको हम कहते हैं दीज आर फाइब्रस जॉइंट्स. एंड सेकेंड कैटेगरी हमारे पास उन जॉइंट्स की है जो कि स्लाइटली मूवेबल हैं, तो इनको हम कहते हैं दे आर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. और थर्ड कैटेगरी उन जॉइंट्स की है जो कि फ्रीली मूवेबल हैं और इनको हम कहते हैं दीज आर द साइनोवियल जॉइंट्स. अब जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं इसकी ओवरऑल कह लें कि इनके अंदर क्या होता है, एक्चुअली बोन्स आर यूनाइटेड बाय द फाइब्रस टिश्यू. इसमें बोन्स फाइब्रस टिश्यू से आपस में जुड़ी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्कल की जैसे बोन्स हैं, स्कल की जिनको हम सूचर्स भी कहते हैं, वो आपस में फाइब्रस टिश्यू से जुड़ी हुई हैं. लाइक हियर वी हैव गॉट द वन बोन एंड हियर वी हैव गॉट द अनदर बोन. तो ये आपस में किससे जुड़ी है? ये फाइब्रस टिश्यू से आपस में जुड़ी हुई है. सो ये क्या है? ये फाइब्रस जॉइंट की एग्जांपल है. सो स्कल के जो सूचर्स हैं दे आर फाइब्रस जॉइंट्स. इसी तरह से हमारे जो टीथ अपनी सॉकेट्स के अंदर फिक्स हैं वहां पे भी फाइब्रस टिश्यू इन्वॉल्व है. सो वो भी फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जांपल्स हैं. एंड देन वी हैव गॉट द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जैसे कि वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं. सो इनमें बोन्स जो हैं वो कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं. हमारे वर्टिब्रा के साथ एसोसिएटेड कुछ जॉइंट्स जो हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं. एंड देन वी हैव गॉट द थर्ड कैटेगरी ऑफ जॉइंट्स विच आर फ्रीली मूवेबल, जिनको synovial जॉइंट्स कहते हैं. एंड दे आर द जॉइंट्स इन विच द जॉइंट कैविटी इज फिल्ड विद synovial फ्लूइड एंड लाइंड बाय द synovial मेम्ब्रेन. जो मोस्ट कॉमन जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में वो synovial जॉइंट्स ही हैं, राइट.
मोस्ट कॉमनली जो जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो सनोवियल जॉइंट्स ही हैं। इसमें होता क्या है कि एक जॉइंट कैविटी होती है विच इज फिल्ड विद द सनोवियल फ्लूइड एंड विच इज लाइंड बाय द सनोवियल मेम्ब्रेन। अंदर उसकी सनोवियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है और सनोवियल फ्लूइड से वो जॉइंट्स फिल्ड होते हैं। अभी हम इसकी जो सब कैटेगरीज डिस्कस करेंगे वहां पे इसको फर्दर डिटेल से भी देखते हैं। सो यू सीन हियर फाइब्रस जॉइंट्स, राइट, ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। अब देख सकते हैं कि ये स्कल की ये एक बोन है, ये एक और बोन है, राइट। तो इसमें आप देखें कि ये जो प्रेजेंट है, राइट, दिस इज द सूचर, दिस इज अनदर सूचर, दिस इज अनदर सूचर। तो ये जो सूचर्स हैं अगर आप एनलार्ज करके देखें, देखिए दो बोन्स के दरमियान में ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, दिस इज द फाइब्रस टिश्यू। सो ये फाइब्रस जॉइंट्स हैं। सिमिलरली ये हमारे अपर और लोअर जॉ में जो टीथ अपनी सॉकेट्स के अंदर फिक्स हैं वहां पे भी फाइब्रस टिश्यू इन्वॉल्व है। तो ये भी फाइब्रस टिश्यू ही की एग्जांपल्स हैं। एंड देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, राइट। इसमें जैसे खास तौर पे यू सीन हियर कि ये जो लंबोसैक्रल जॉइंट है, यानी कि जो लास्ट लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम के दरमियान में जो जॉइंट है, और इसी तरह से जो प्यूबिक सिम्फिसिस है, राइट, जो कि राइट और लेफ्ट प्यूबिस के दरमियान या हिप बोन्स के दरमियान जॉइंट प्रेजेंट है इंटीरियरली। इस तरह से सैक्रोइलियक जॉइंट है जहां पे सैक्रम और जो इलियम है ऑफ द हिप बोन दे आर मेकिंग जॉइंट, राइट। सो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, बेसिकली दे आर ऑल एक्चुअली द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इन पे अब जस्ट इमेजिन करें कि हमारी लोअर बैक पे उस तरह से मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है जैसे कि हमारे इसमें आर्म्स पे या अपर लिम्स पे मूवमेंट्स पॉसिबल है। सो ऑफ कोर्स दीज आर मूवेबल बट दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। एंड देन वी हैव गॉट द सनोवियल जॉइंट्स जो कि फ्रीली मूवेबल हैं। इसमें आप देख सकते हैं इन टर्न वी हैव गॉट द पिवट जॉइंट्स जिस पे रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा जो रेडियस और अल्ना है, लाइक द रेडियस ऑन द आउटर एस्पेक्ट एंड द अल्ना ऑन द इनर एस्पेक्ट, इनके दरमियान में जो जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है जो कि, और इस जॉइंट में एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही होती है, तो ये पिवट जॉइंट है। उसके बाद फिर जो हमारा एल्बो जॉइंट है, राइट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट्स, राइट। सो इसमें बेसिकली ये जॉइंट एक हिंज के जैसे ये ऑपरेट करता है या एक कब्जे की तरह ऑपरेट करता है, राइट। सो इसीलिए हम इन जॉइंट्स को बोलते हैं ये हिंज जॉइंट है। सो जो हमारा कह लें कि एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं, ये हिंज जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। सो ये हिंज जॉइंट हमारे पास आ गया जो कि एक और टाइप है सनोवियल जॉइंट्स की। ये वाला जो है दिस वन इज द पिवट जॉइंट। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको कौन सी दी हैं, एक तो जो रेडियस और अल्ना के दरमियान जॉइंट प्रेजेंट है इन द फोर आर्म, इसी तरह से लेग्स में जो टिबिया और फिबुला के दरमियान प्रेजेंट है वो भी एक तरह से पिवट जॉइंट है। एंड देन वी हैव गॉट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो इसमें बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है, एक बहुत बड़ी सॉकेट होती है जिसके अंदर एक बॉल आके अटैच हो रही होती है, राइट। जो सीन हियर एक सॉकेट है जिसमें बॉल अटैच्ड है और बॉल जो उसमें फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में और डिफरेंट प्लेन्स में मूव कर सकती है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हिप जॉइंट है जो कि हिप बोन और फीमर के हेड के दरमियान बनता है। सिमिलरली स्कैपुला और ह्यूमरस के दरमियान जो शोल्डर जॉइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट ही की एग्जांपल है। सो पिवट हो या हिंज हो या बॉल एंड सॉकेट हो, दे आर ऑल गुड एग्जांपल्स ऑफ द सनोवियल जॉइंट्स। नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ कंपैरिजन of these joints. So you seen here extreme left column we have got features, in the second column we have got the fibrous joint, in the third column the cartilaginous joint, and then in the extreme right column we have got the synovial joint. So first of all हम ये देखते हैं कि इनमें bones आपस में कैसे जुड़ी हैं। तो fibrous tissues fibrous joints के बारे में अभी हम देख के आए हैं कि इसमें bones fibrous tissue से जुड़ी हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में बोन्स कार्टिलेज की मदद से आपस में जुड़ी हैं, वो हाइलन कार्टिलेज हो या फाइब्रो कार्टिलेज हो या फाइब्रस कार्टिलेज व्हाटसोएवर। सनोवियल जॉइंट्स में जो बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं वो लिगामेंट्स की मदद से जुड़ी हुई होती हैं जो कि कई दफ़ा कैप्सूल्स में मॉडिफाई हुए होते हैं। एंड सनोवियल जॉइंट्स दे कंटेन अ सनोवियल कैविटी विच इज फिल्ड विद द सनोवियल फ्लूइड एंड सराउंडेड बाय द सनोवियल मेम्ब्रेन एक्चुअली एंड बाय अ कैप्सूल जो कि सनोवियल मेम्ब्रेन है, राइट। सो इसमें सनोवियल कैविटी होती है फिल्ड विद सनोवियल फ्लूइड सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल एंड द सनोवियल मेम्ब्रेन।
सो ये हमने देखा कि बोन्स कैसे आपस में जुड़ेंगे, फाइब्रस जॉइंट में फाइब्रस टिश्यू से, कार्टिलेजनस जॉइंट्स में कार्टिलेजनस टिश्यू से, और सनोवियल जॉइंट्स में बेसिकली बोन्स आपस में लिगामेंट्स की मदद से मेनली जुड़ी हुई हैं। और फिर सनोवियल जॉइंट्स एक अपना पेक्यूलियर स्ट्रक्चर है जिसमें जॉइंट कैविटी होती है, सनोवियल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, और उसके बाद फिर जो उस कैविटी की जो लाइनिंग है वो सनोवियल मेम्ब्रेन से लाइंड है, फाइब्रस कैप्सूल दैट्स आल्सो देयर, राइट। सो जो जैसे हमारा जो एल्बो जॉइंट है या नी जॉइंट है, बड़ी क्लासिक एग्जांपल्स हैं सनोवियल जॉइंट्स की। अब एग्जांपल्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। लाइक जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन्स या जॉइंट्स बिटवीन टीथ एंड द जॉ बोन्स, ये किसकी एग्जांपल्स है? फाइब्रस जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद फिर कार्टिलेजनस जॉइंट्स की देखें, जॉइंट्स बिटवीन ग्रोइंग बोन्स, जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं उनके दरमियान जो जॉइंट्स होंगे वो कार्टिलेजनस जॉइंट्स होंगे। मिसाल के तौर पे अब फर्ज करें कि एक बच्चा है जिसकी ह्यूमरस है, एक बच्चा है जिसकी एज में भी 12 ईयर्स है, सो उसके ह्यूमरस का ये हेड है, और उसके बाद फिर ये उसकी शैफ्ट है, और ये इसका लोअर एंड है। सो बेसिकली अब ये कह लें कि ओवरऑल ये जो हेड है और ये जो शैफ्ट है, यहाँ पे कार्टिलेजनस जॉइंट प्रेजेंट होगा क्योंकि इसके अलॉन्ग ग्रोथ हो रही होती है, राइट। सो 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज पे जाके अल्टीमेटली फ्यूजन हो जाती है और सॉलिड प्रॉपर बोन बन जाती है, लेकिन उससे पहले जो जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज द कार्टिलेजनस जॉइंट। एंड जॉइंट्स बिटवीन लास्ट लंबर वर्टिब्रा एंड सैक्रम, राइट, वो भी किसकी एग्जांपल है? कार्टिलेजनस जॉइंट की। और प्यूबिक सिम्फिसिस, यानी कि प्यूबिक सिम्फिसिस जो है, यानी कि जो प्यूबिस एंटीरियरली राइट और लेफ्ट हिप बोन की आपस में जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं, वो भी किसकी एग्जांपल है? वो भी फाइब्रस कार्टिलेज की, इसकी कार्टिलेजनस जॉइंट की एग्जांपल है। सो दे आर जॉइंड बाय द फाइब्रस कार्टिलेज। इसी तरह से जो लास्ट लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम के दरमियान में जो जॉइंट है, वो जो लंबोसैक्रल जॉइंट है, वहाँ पे भी फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है। फिर सनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल्स में वी हैव गॉट बॉल एंड सॉकेट, हिंज एंड द पिवट जॉइंट्स। इनको भी हमने फोटोग्राफ्स में भी देखा है। अ क्वेश्चन एट दिस स्टेज, द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्रा एट द पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ पेल्विस इज, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, कार्टिलेजनस जॉइंट है या फाइब्रस जॉइंट है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज कार्टिलेजनस जॉइंट। अभी हमने देखा कि बेसिकली जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों साइड के हिप बोन्स एंटीरियरली एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं, और वहां पे फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट था, और ये जॉइंट फिर कहलाएगा कार्टिलेजनस जॉइंट। एंड नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ द टाइप्स ऑफ द synovial joints. So very important and conceptual table from the examination point of view. In the extreme left column we have got the feature, in the second column we have got ball and socket joints, and in the third column the hinge joints, and in the extreme right column or fourth column we have got the pivot joints. अब सबसे पहले नंबर पे कितनी प्लेन्स में मूवमेंट पॉसिबल है? सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में यू सीन हियर मेनी प्लेन्स में मूवमेंट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अब जो शोल्डर जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, राइट। तो इसमें यू सीन हियर इन दिस प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन एंड इवन इन दिस प्लेन ये मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। सो मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन मेनी प्लेन्स। और उसके बाद जो हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट में जस्ट मूवमेंट एक ही प्लेन में पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एल्बो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है, और इसमें जस्ट एक ही प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है। सो मैं जिस मर्जी डायरेक्शन में खड़ा होकर मूवमेंट करूंगा ये बेसिकली प्लेन एक ही बनेगा। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी 1 कि कितनी प्लेन्स में मूवमेंट हो रही है हिंज जॉइंट्स में? ओनली द 1 प्लेन। पिवट जॉइंट में मूवमेंट है वो अराउंड एन एक्सिस होती है। फॉर एग्जांपल अब जैसे जो रेडियस और अल्ना के दरमियान, यानी कि रेडियस आउटसाइड पे और इनर साइड पे अल्ना, इनके दरमियान में जो जॉइंट है वो बेसिकली पिवट जॉइंट है। और इसमें देखें कि एक एक्सिस है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, राइट। सो इसमें मूवमेंट होती है अराउंड एन एक्सिस। और उसके बाद फिर डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अगर प्लेन्स मैनी हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शंस हैं वो भी मैनी होंगी, लेकिन हिंज जॉइंट में जो डायरेक्शंस हैं वो 2 हैं। देखिए ये अगर हिंज जॉइंट में ये मूवमेंट्स हो रही हैं तो ये प्लेन तो एक ही है, लेकिन एक ही प्लेन में दिस इज वन डायरेक्शन एंड दिस इज अनदर डायरेक्शन, राइट। सो फ्लेक्शन इज इन वन डायरेक्शन, एक्सटेंशन एट एल्बो दिस इज इन अनदर डायरेक्शन। सो 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट पॉसिबल होती है एट द हिंज जॉइंट्स। सेम आइडिया नी जॉइंट्स के लिए भी है। एंड देन जो पिवट जॉइंट है इसमें भी 2 ही डायरेक्शंस में मूवमेंट पॉसिबल है। लाइक यू सीन है अगर पिवट जॉइंट है तो इसमें दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, राइट। सो ये जो पंजाबियों की बड़ी मोस्ट कॉमन मूवमेंट होती है, लाइक एवरीथिंग पे कहते हैं जी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं आना है, मैंने नहीं ये काम करना। सो बेसिकली पिवट जॉइंट पे मूवमेंट है एंड दिस इज द 2 डायरेक्शंस।
एंड थर्डली नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ मसल्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ कम से कम 2 पेयर्स एसोसिएटेड होंगे, तभी तो वो मैनी प्लेन्स और मैनी डायरेक्शंस में मूव कर पाएंगे। हिंज जॉइंट्स के साथ एटलीस्ट 1 पेयर एसोसिएटेड होगा। सेम आइडिया पिवट जॉइंट्स के बारे में भी है, एटलीस्ट 1 पेयर शुड बी देयर। एंड नंबर 4 पे इफ यू टॉक अबाउट देयर मोबिलिटी, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं इनकी मोबिलिटी को मैंने 4 प्लसेस के साथ डिनोट किया है, जबकि हिंज जॉइंट्स की मोबिलिटी को 1 प्लस के साथ और पिवट की मोबिलिटी को 3 प्लसेस के साथ डिनोट किया है। एंड यू सीन हियर, ये एक जनरलाइजेशन है। द मोर यू आर मोबाइल द लेसर इज योर स्टेबिलिटी। बेसिकली आप मोबिलिटी बढ़ाते हैं स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके। तो अगर शोल्डर जॉइंट हमारी बॉडी का मोस्ट मोबाइल जॉइंट है तो यही लीस्ट स्टेबल जॉइंट भी है, राइट। सो जिसका मतलब ये होगा कि ये मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड जॉइंट है। सो इवन जो फाइटर्स होते हैं उनको भी मैनूवर्स का पता होता है, और जस्ट बाई एक्सटेंडिंग योर आर्म एंड गिविंग ए जर्क ओवर हेयर, बड़े आराम से वो जो हेड है इसका ह्यूमरस का, उसको वो जो सॉकेट है इसकी स्कैपुला की, उससे वो डिस्प्लेस कर देते हैं। सो जॉइंट डिसलोकेशन वेरी इजी फॉर दिस, राइट। सो देखिए इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बहुत मूवेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी जो है वो कम है। स्टेबिलिटी को मैंने माइनस से नहीं बल्कि 1 प्लस के साथ रिप्रेजेंट किया है। माइनस का मतलब तो होगा कि ये जॉइंट स्टेबल ही नहीं है, मीन्स के ह्यूमरस जो है वो कहीं और पड़ी हुई है, और जो स्कैपुला की जो आप कह लें कि जो स्कैपुला है वो कहीं और पड़ी है, तो जॉइंट स्टेबल ही नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज बीइंग केप्ट स्टेबल, ठीक है, डिफरेंट मसल्स के जरिए, डिफरेंट टेंडन्स वगैरह के जरिए, लिगामेंट्स के जरिए, अल्टीमेटली इट्स बीइंग केप्ट स्टेबल, ठीक है। जबकि जो हिंज जॉइंट है इसकी मूवेबिलिटी कम है लेकिन स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। एंड जो पिवट जॉइंट है ये सिग्निफिकेंटली मूवेबल भी है और ये स्टेबल भी जॉइंट होता है। फिर एग्जांपल्स यू सीन हियर, बॉल एंड सॉकेट की बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल शोल्डर जॉइंट है, इसके अलावा हिप जॉइंट भी हो सकता है। हिंज जॉइंट की एग्जांपल एल्बो जॉइंट है, और पिवट जॉइंट की एग्जांपल जो है वो रेडियो अल्नर जॉइंट है। सो हिंज जॉइंट में एल्बो के अलावा इवन नी जॉइंट और इवन रेडियो अल्नर जॉइंट के अलावा जो टिबियोफिबुलर जॉइंट है, दे आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ द पिवट जॉइंट्स। सो यू सीन हियर, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस फोटोग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट फोटोग्राफ में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब देख सकते हैं कि ये शोल्डर जॉइंट है जिसमें ये एक सॉकेट है, राइट, जो कि स्कैपुला की सॉकेट है, जिसके अंदर एक बॉल आके फिट हो रही है, राइट, विच इज हेड ऑफ द ह्यूमरस एक्चुअली। सो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। मैनी डायरेक्शंस में, मैनी प्लेन्स में मूवमेंट्स पॉसिबल है। जबकि अब देखेंगे लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और अल्ना और फिबुला की अपर एंड्स के दरमियान में जो जॉइंट प्रेजेंट है ये हिंज जॉइंट है, और इसकी मूवमेंट्स इस जॉइंट के अक्रॉस 1 प्लेन में और 2 डायरेक्शंस में पॉसिबल है। जबकि जो अल्ना और रेडियस के दरमियान जो जॉइंट्स हैं, राइट, ये पिवट जॉइंट है जहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट अराउंड एन एक्सिस पॉसिबल है। सो दैट्स ऑल अबाउट द जॉइंट्स। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। Don't join any traditional academy. नेशनल एप्लीकेट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्लीकेट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो।
सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉप ग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं।